दिलाया करो बच्चे मुझे, बिकॉज आई नीड टू सबमिट दैट वन. ठीक है. सो अभी जैसे हमने देखा ह्यूमंस विविपेरस होते हैं. सो पहला यूटेराइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन पहली स्टेज. सेकेंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स वाइडन अप होता है बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड द प्रेशर ऑफ द बेबी. And then the passage of a baby are collectively called as labor. Labor is accompanied by localized sensation of discomfort or agony like labor pain. Parturition जो है it is controlled by a complete neuroendocrine mechanism. Signals arises from the fully formed fetus. So जब भी baby mature हो जाता है, when it completes its whole growth, automatically the hormones are secreted by the fetus and the placenta causes a mild uterine contraction. So जो maternal placenta है और fetal placenta, so उसमें से जो maternal placenta होता है वहां पे contraction शुरू हो जाता है. It is accompanied by एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ जाता है. कौन से दो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? इट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. डोंट फॉरगेट दिस, which increases. इसके कारण ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं मसल्स के वो एक्टिव हो जाते हैं. शायद मैंने पढ़ाया था आपको. They causes vigorous contraction of myometrium. What is myometrium? It is another layer of a uterine wall. एक endometrium सबसे इनर साइड में और मिडल में होता है मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम में ढेर सारी मसल्स होती है. The fully developed fetus gives signal for the uterine contraction by secreting adrenocorticotropic hormone. So that is ACTH. कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है बच्चों? ACTH from the pituitary gland and corticosteroids from adrenal gland. So यहाँ पे दो ग्लैंड्स कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होती है बच्चों? बताओ जरा मुझे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ. What is the location of adrenal gland? चलो, come on. What is the location of the adrenal gland? Adrenal gland का लोकेशन क्या है? Waiting for your answer. कहाँ होता है? एक ही आंसर मिला है, बाकी के बच्चे बताएंगे मुझे एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है. सौरभ का आंसर सही है. अंशुजा इज ऑल्सो करेक्ट. गो अहेड. आकांक्षा इज ऑल्सो करेक्ट. निकिता ऑल्सो. What is the alternative name of adrenal gland? हाँ, मंजरी का भी आंसर सही आ रहा है. What is the alternative name of adrenal gland? हाँ तुझे बेटा आपका भी सही है. What is the alternative name of adrenal gland? Rishita, very correct. हाँ, suprarenal gland. Yes, Kausar. It is also known as suprarenal gland. चलो आगे चलते हैं. तो इट इज सिक्रेटेड बाय द किडनी. सो दो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं बच्चों. एक तो ACTH. सो हार्मोन्स के नाम, हाँ निकिता सही है. सो हार्मोन्स के नाम बच्चों आपने भूलना नहीं है. सो एड्रेनोकॉर्टिकोटॉपिक हार्मोन जिसे हम ACTH कहेंगे फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. इससे कौन रिलीज होता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो मदर से ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन हो रहा है, which causes vigorous contraction of uterus. में contraction होना स्टार्ट हो जाता है. You can check it out here. So this is the uterine wall, right? So यहाँ पे ये uterine wall and this is going to be a cervix. Cervix जो है वो widen up हो रहा है और सबसे innermost layer जो some endometrium कहते हैं. अभी तो यहाँ पे baby develop हो गया है, you know, it is like baby fetus जो है पूरा develop हो गया है यहाँ पे, head and all. अभी देखो the region is यहाँ पे जो endometrium है it do contraction and relaxation. It do यहाँ पे जब contraction relaxation होता है धीरे धीरे the baby descends down. नेक्स्ट स्टेज जो है बच्चों इसे मैं कहूंगी and it is very painful as I say. In many female this period labor pain जो रहता है कुछ फीमेल में it starts and it remains
कुछ समय के बाद में लाइक 1 hour के इंटरवल में या कंटिन्यूअसली इट रिमेन्स फॉर 2 days. जनरली 48 hours तक के भी कुछ फीमेल में रहता है दिस पेन, सो इट इज टेरिफाइंग. डिपेंड्स अपॉन द फीमेल बॉडी. In some female, it is just for an hour and the baby got delivered. And for some female, it remains for the 2 hours. Or 2 days, as I said. Sometimes could be 3 days for many female. It depends on the female body. And as I said, I think I talked about in my last lecture, when the labor pains start, the feeling of the labor pain is that breaking of our at a time 208 bones. You know that जब हमें सिर्फ मोच आती है हल्की सी, या हम चलते चलते कहीं टकरा जाते हैं और कितना पेन होता है ना. सपोज हम चल रहे हैं और हमारे टोज जो है उसके बोन को चलते चलते टकरा गए कहीं पे और हमें दर्द होना स्टार्ट होता है, तो इट बिकम्स टू टफ. सो एज आई सेड 208 बोन्स का जो ब्रेक होता है ऐसा पेन फीलिंग होता है. उसके बाद में सेकंड स्टेज है डायलेटिंग स्टेज. उसमें क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो जाता है फ्रॉम द टॉप, फोर्सिंग, जिसके कारण बेबी बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट द बेबी की ग्रोथ भी हो गई, वेट भी बहुत ओवरवेट हो जाता है, सो बेबी डिसेंड डाउन टुवर्ड्स द सर्विक्स, forcing the baby towards the cervix. Contractions are accompanied by pain, obviously, caused by compression of blood vessels. Blood vessels का भी compression हो रहा है. Oxytocin induced uterine contraction becomes stronger and stronger due to stimulatory reflex, because now the baby wants to come out of the womb of the mother. As the baby is pushed down the uterus, its head comes to lie against cervix. जैसे मैंने कहा है, जब भी बेबी बॉर्न होता है हेड रीजन सबसे पहले होता है एंड देन द लेग्स कम. बट इट इज नॉट ऑलवेज, सबके लिए ऐसा होगा जरूरी नहीं, बट मेजॉरिटी में इट इज लाइक हेड बिलो पोजीशन होती है. कुछ बेबीज में हेड अपसाइड रहता है वर्टिकल पोजीशन में एंड द लेग्स कम फास्ट. उसमें दिक्कतें होती है बच्चों, बिकॉज व्हेन द बेबी हेड कम्स आउट वो सांस लेना स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. Then slowly the other body organs they come out, isn't it? So meanwhile what happens, baby can breathe outside. What is the issue with the other side? Leg, all over your trunk, body parts pehle aayenge. So the issue is with the breathing issue, isn't it? So many time wo position mein baby head down position mein it's good. As the baby is pushed down the uterus, its heads come to lie against cervix. Cervix get dilated matlab it's get widen up. The vagina also shows the similar dilation, gives the passage for the baby to come down. This stage of a labor can normally last up to few hours. It ends in the rupturing of the amniotic membrane of the fetus. Labor pain बिल्कुल कम हो जाता है जैसे amniotic bag जो है, sac जो है वो break हो जाती है, and now baby along with the amniotic fluid that rushes down. You can check it out guys here, like that it comes. You know, this is the vagina portion. It got dilated. Dilate होने के बाद में relaxin hormone secrete होता है. 1 second it come back to its own position. So you can check it out. This is the cervix, this is the vagina. Here it got dilated. So fast cervix भी हम इसे कहते हैं. This is the uterus बच्चों, ये fetus है. यहाँ पे umbilical cord है guys. और ये stage 2. Now amniotic sac जो है वो break हो गया बच्चों. Along with the fluid, the baby is descend down like that. फिर जैसे ही बेबी बाहर निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है और यहाँ पे क्लैम्प एक छोटा सा चिमटा लगाया जाता है. आपने देखा भी होगा समटाइम कहीं जगह पे उसको थ्रेड से बांध दिया जाता है. एंड बेबी बॉर्न होने के बाद में ये चेक किया जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज देयर आर द लिविंग सेल्स आर देयर. और इसी समय अम्बिलिकल कॉर्ड के जो ड्रॉप्स होते हैं ब्लड के उसको सेव किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है एज इन कॉर्ड ब्लड, जिसमें ढेर सारे स्टेम सेल्स होते हैं. ना लास्ट वाला स्टेज जो है इसे हम कहते हैं बच्चों एक्सपल्शन स्टेज. क्या होता है ये एक्सपल्शन स्टेज? द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर
The normal delivery, the fetus passes out through cervix and vagina with the head in a forward direction. Baby come out. It takes 20 to 60 minutes. जिससे मतलब अराउंड आर का समय ले सकता है या लेस देन है. The umbilical cord is tied and cut off close to baby's navel, है ना. बेबी का umbilicus portion जो है वहां से कट किया जाता है. लास्ट वाला स्टेज जो है वो है आफ्टर बर्थ. आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है. मैंने जैसे लास्ट टाइम ही शायद आपको एक्सप्लेन किया था. और पूरा प्लेसेंटा का वेट मैंने बताया था वो बेबी के वेट से ज्यादा रहता है, तो बहुत सी बार उसको वैक्यूम पंप से निकाला जाता है. बहुत सी बार उसे पूरा आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है. उसमें लॉट ऑफ ब्लड टिश्यूज एंड ऑल होते हैं. मेजर पार्ट उसको ड्यूरिंग द बेबी डिलीवरी निकाला जाता है और बचा हुआ स्लोली एज एन मेंसेस की तरह पूरा 1 मंथ में निकल जाता है. दैट होल्ड द प्लेसेंटा थिंग. सो उसे बहुत सी बार आफ्टर बर्थ भी कहते हैं. ड्यू टू द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस दिस प्रोसेस हैपन विद इन 10 to 45 मिनट्स ऑफ डिलीवरी. वो नेचुरली निकल आता है और बचा हुआ वैक्यूम से भी निकाला जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट गाइस पार्चुरेशन प्रोसेस. पार्चुरेशन प्रोसेस में हमने डायलेशन स्टेज पढ़ी फर्स्ट, दूसरी एक्सपल्शन स्टेज पढ़ी. बच्चों डायलेशन स्टेज कभी कभी बहुत सारे फीमेल्स में इफेक्टिव नहीं होती है, या देयर आर सो मेनी फीमेल्स दे उसमें कॉन्ट्रैक्शंस बहुत फास्ट नहीं होते एंड दे कैन नॉट पुश द बेबी आउटसाइड. सो बहुत सी बार वैक्यूम पंप से भी डिलीवरी की जाती है जहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई किया जाता है एंड बाय यूजिंग और वैक्यूम पंप को हेड रीजन पे यहाँ पे लगाया जाता है. वैक्यूम पंप को आई मीन दैट थिंग और वो जो सॉकेट जो होता है उसे एंड देन पंप प्रेशर अप्लाई किया जाता है बेबी को लिया जाता है बाहर. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन कि इसमें ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. दिस आर द थिंग्स दैट सर्जन ओनली कैन डू. सो एक्सपल्शन स्टेज पढ़ा बच्चों एंड आफ्टर. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? बच्चों समझ में आया तुम लोगों को? डू यू अंडरस्टैंड अप टू दिस? रेज योर हैंड. समझ में आया सभी बच्चों को? अच्छी बात है. वेरी गुड. सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट. नाउ द नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है लैक्टेशन. सो फीमेल में व्हेन द बेबी गॉट डिलीवर मदर्स में मैमरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है. वैसे तो 8th 9th मंथ से ही मैमरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, बट व्हेन द बेबी बॉर्न इट इज नॉट हैपनिंग दैट वेरी नेक्स्ट टू आर द मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है. वेरी फर्स्ट मिल्क जो होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम. इट इज नॉट काइंड ऑफ मिल्क, इट्स क्वाइट थिकर देन दैट ऑफ मिल्क और उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. और कहा जाता है वो बेबी को देना बहुत जरूरी है बिकॉज इट गिव्स इम्पोर्टेंट इम्यूनिटीज टू देयर बेबी. मतलब उसमें यू ऑल नो दैट उसमें IgA एंटीबॉडीज होती है और वो बेबी के लिए बेबी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दैट्स व्हाई कोलेस्ट्रम का फीडिंग करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है ना. सो दैट इज द साइंस बिकॉज यू नो दैट उसमें क्या ज्यादा रहता है IgA एंटीबॉडी. सो हम लैक्टेशन को पढ़ेंगे. So, हम आगे चलते हैं बच्चों. The mammary glands of the female start producing milk at the end of pregnancy. By the process of lactation, prolactin is the hormone. So, milk production के लिए कौन सा hormone जरूरी है? Underline करो बच्चों. It is the prolactin. Prolactin is the hormone which is responsible for production of milk. ये जरूरी है बच्चों for the production of milk. लैक्टेशन का क्या काम है? लैक्टेशन हेल्प्स इन द मदर इन अ फीडिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. लैक्टेशन मदर को फीड करने के लिए मतलब बेबी को फीड करने के लिए जरूरी है. द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मैमरी ग्लैंड्स सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रम. मैंने बताया आपको. इट इज स्टिकी येलो फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड्स सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. इट कंटेन्स प्रोटीन, लैक्टोज, मदर एंटीबॉडीज और IgA. And IgA मतलब that is mother antibody. The fat content is cholesterol में बहुत fat content कम रहता है. Antibodies present in it help in developing resistance for the newborn baby infections और इससे इम्यूनो रिस्पॉन्स. आजकल बहुत जगह पे ऐसा होता है
most of the female, they don't give, they don't feed actually, and they prefer the like artificial food जो babies को दिया जाता है, like artificial milk also you can say. So what happens because of that, immunity जो रहती है babies की immunity वो कम हो जाती है. अभी तो we have a vaccine, we have a tablets, we can raise that baby, अच्छे से raise कर सकते हैं. But वही है comparatively the mother feeded baby and comparatively the artificial food लेने वाला baby में different diseases को susceptible होता है. ऐसा बेबी जो मदर मिल्क पे एटलीस्ट फॉर द 6 months जो फीड नहीं कर पाता या नहीं करता है और जो आर्टिफिशियल फूड पे रहता है उसकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है. हाँ वो ग्रो तो होगा ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव अ मेडिकल साइंस हमारे पास में अच्छे. हाँ कभी कभी मदर में कोई इश्यूज है, मदर इज लाइक इन्फेक्टेड है, मदर को कैंसर है या ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे में obviously mother milk नहीं दिया जाता है, instead of that artificial food दिया जाता है babies को. But if mother is okay then it should that mother should feed the baby to give a healthy life to the baby. Now why is it said that consumption of mother milk is the safest for the newborn? Yes, it is पोर्टेबल होता है बच्चों उसमें, मदर बॉडी से जो भी फूड मदर खाती है, एंड लुक द कनेक्शन इज एंड इट इज पोर्टेबल, वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है बेबीज के लिए, ठीक है ना. एंड देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज. सो आप देख सकते हो, डू यू हैव द नोट्स विथ यू? Do you have check it out the answer of this question and tell me what is the answer, why it is said that consumption of the mother milk is safest for the newborn? One thing that it has the IgA रिच फूड होता है. कोलेस्ट्रॉल में जैसे IgA होता है वैसे मदर मिल्क में भी हाँ कोलेस्ट्रॉल में शुरुआत में ज्यादा रहेगा फिर कम रहेगा, बट हाँ होता है उसमें IgA एंटीबॉडीज होती है ऑफ कोर्स. व्हाट इज द रीजन? कितने लोग हैं जो बुक में ढूंढ रहे हैं आंसर्स को? व्हाई इट इज सेड दैट? हाँ आप ढूंढ रहे हो बच्चों, एंड टेल मी दैट, टेल मी आंसर बताओ मुझे. यस गाइस टेल मी द आंसर. Same thing what I told. It has all the nourishment which are required for the good growth of the baby. ठीक है बच्चे, good. Now this is the lactation also we have studied. It contains fatty acids, amino acids, and minerals and vitamins. Everything it has. Yes, sir. Yes, very good. हाँ बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं next topic and it is the reproductive health. So what is reproductive health? You all know that reproductive health का issue जो है, according to World Health Organization, reproductive health का meaning होता है total well-being in all aspects of reproduction. It's emotional, behavior, and social aspect along with the physical ones. Therefore, a society with the people having physically and functionally normal reproductive organs and the normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspects might be called as a reproductive healthy society. It may possible that now what is happening बच्चों, आगे आगे ऐसा हो रहा है कि लोगों में fertility issues बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, you know, males and females दोनों में. Reason could be anything that nowadays people are not concentrating the exercise, their lifestyle issue, food intake, whatever it could be. But sterility problem है, मतलब they are unable to produce the male gametes and female gametes. जब sterility issue रहेगा तो reproduction properly नहीं होगा. Many of the people they are suffering from the various kinds of sexually transmitted disease जिसे हम कहते हैं STD.
Many of the people, they are unaware about the STD, that is sexually transmitted diseases, and they don't go to the doctor's consent. They never consent to the doctor, and that spread among the community. So this kind of the things. So and yes, so you have to be the good person, so that are the things that comes in the reproductive health. Of all the social goals of India, an important one is to attain total reproductive health. India was amongst the first few countries in the world to initiate action plans and programs at the national level to improve reproductive health. मतलब हम कैंपेन चलाते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाए. All these improved programs covered wider areas related to reproduction, जैसे कि reproductive and child health care programs. अभी जैसे हमारे इंडिया का इशू, यू ऑल नो दैट वी हैव द इश्यूज कि हमारा पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद में. तो हमें ऐसा है कि वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई हमारे इंडिया में है कि जो भी पर्सन वर्किंग है गवर्नमेंट सर्विसेज में, सो एटलीस्ट उसको 2 बेबीज है तभी उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज है. और लोगों का कहना है हम दो हमारे दो, इफ यू आर द वन, एक फैमिली हो तो आपको 2 किड्स है, बिकॉज हमारी उतनी आमदनी नहीं है और उतना हमारा इंडिया इतना रीच भी नहीं है, और हमारे पास में उतने ज्यादा, आई वुड से कि हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं. सो जब ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हमारे पास में, तो रिप्रोडक्शन जो रेट जो है हमें रिड्यूस करना है, इसलिए हमारे यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई है. सो एक फैमिली में 2 पीपल रहेंगे तो उसको ऑल द फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसको हर तरीके से केयर की जाएगी, एजुकेशनल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड ऑल. सो इसलिए ऐसे रूल थे. तो पहले 3 का रूल था, लेकिन वन फैमिली में 3 पीपल है तो उसको सभी फैसिलिटीज मिलती थी. अभी 2 का रूल आया है. So these are the things that is happening. To create awareness among the people about various aspects related to reproduction, to provide the facilities to people to understand and build up reproductive health, to provide support for building up a reproductively healthy society is a aim से बच्चों. ये आपको पढ़ना है. Goals of RCH, that is reproductive child care health program, to bring about change mainly in the 3 critical health indicators: infertility rate, infant mortality and maternity. मतलब बच्चों पुराने जमाने में इश्यूज क्या थे ना, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी फीमेल्स की रहती थी. एक तो एज ए सेड कि बहुत पहले शादियां की जाती थी, लाइक प्रीमैच्योर बोल सकते हैं. शी यूज्ड टू गिव अ बर्थ at the age of 16, at the age of 17, isn't it? So that were the issues. And baby born होते ही उनका mortality rate भी बहुत ज्यादा था. So mother का mortality rate और infertility issue. अभी जैसे medical facilities बहुत है बच्चों, people are working good, मतलब it is answer में. रिसर्च मैगजीन का ये कहना है, जो भी साइंटिफिक मैगजीन्स आता है या साइंटिफिक जर्नल्स है, रिसर्च ही बता रहा है. People, because people are sitting continuously in front of the computer, they are not doing exercise, not eating a good health issues, and many times it is also that they are not getting married at the proper age, isn't it? So sometimes the people become very workaholic, isn't it? So infertility issues बढ़ रहे हैं, है ना. आगे चलेंगे. The goal of RCH can be achieved by the following ways. By introduction of sex education in the schools. Schools should be encouraged to provide correct information to the young so as to discourage children from believing in the myths and clear the misconceptions about the sex related aspect. Most of the time teenagers जो रहते हैं उनमें they within the discussions they have the अलग-अलग needs होते हैं. Because of that also many time आगे जाके infertility issues आ सकते हैं males and females में. Proper, because mind setup अलग तरीके से हो जाता है. Proper information about safe and hygienic sexual practices. और मैंने ये भी बताया है कि sexually transmitted diseases spread होते हैं. AIDS जैसे, सिर्फ AIDS ही नहीं है, और ढेर सारे dangerous sexually transmitted diseases हैं. This can be a problem.
when unsafe sex होता है तो, and all proper information about the reproductive. You should know that. With the help of audio, visual and the print media हमें जानकारी मिल सकती है. गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेप्स लेके आपको एजुकेशन देती है. By encouraging the younger generation about the birth control measures जो हमें पढ़ने हैं आगे जाके, prenatal care of pregnant women, कैसे 9 months तक के मदर की केयर की करनी चाहिए, साथ बेबी की केयर करनी. पहले ऐसा नहीं था, मदर की केयर नहीं की जाती थी, so इसलिए बेबी बॉर्न होते थे वीक, अंडर नरिश्ड. पोस्ट नेटल केयर उसके बाद में भी मदर हैज टू, बिकॉज today you come to know that how many things that mother has to suffer, you know, she has to carry the baby, there are a lot of many changes happen inside her, उसमें बहुत सारे changes आ जाते हैं, fluctuation, some hormones से अचानक से increase हो जाते हैं, then reduced हो जाते हैं, you know, और there are so many changes, internal anatomical changes happen inside the body, and later on also she has to take care of her baby, है ना. तो बेबी की टेक केयर करते करते फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मदर की टेक केयर करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट द टेक केयर इज ऑलवेज फिजिकल, मेनी टाइम इट इज मेंटल आल्सो. पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर चाइल्ड इम्पोर्टेंट. ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट. अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बेबी को हेल्दी रखना है तो मदर को अच्छा फूड खाना चाहिए, ऑल दैट थिंग. By developing awareness about the problem arising due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse हमारे यहाँ पे बहुत होता है, sex related crimes are too much and take up a necessary step to prevent them. In India is not a safe country for the female, isn't it? I would say it is, because you know that there are so many rape cases that is going around, you know. After Nirbhaya also there are so many cases that running in and around, isn't it? So it is like that. So female also have to take care of themselves, and the male has to understand about their responsibility, isn't it? Many times it happens because of lack of knowledge, isn't it? That's it. By creating awareness about stationary ban on अमीनो सेंटेंसेस फॉर सेक्टिव, इस पे बैन है बच्चों. अमीनो सेंटेंसेस क्या होता है? अमीनो सेंटेंसेस में एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, मैंने जैसे कहा सेरीन से, और फिर क्रोमोसोमल मैपिंग किया जाता है जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग. ऐसा तभी इसकी परमिशन लगती है, लीगल परमिशन. पहले इसकी कोई लीगल परमिशन नहीं लगती थी, तो लोग ये टेस्ट जेंडर डिटरमाइन करने के लिए, वे लड़का है या लड़की, ये डिटरमाइन करने के लिए करते थे, जिससे पता चल जाता था और लड़की है तो उसको मिसकैरेज किया जाता था. तो फिर धीरे धीरे इस पे बैन आ गया. इसकी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, पीएमडीटी रूल्स जो होते हैं अमीनो सिंथेसिस की. और जैसे मैंने कहा था बच्चों, आपको सेकेंड या थर्ड मंथ में हमें डॉक्टर को लगा कि भाई नेसल बोन नहीं डेवलप हो रहा है, या कुछ तो लग रहा है उसको कि ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, ब्रेन का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम में, जैसे मैंने कहा, नेसल बोन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो दैट इज द फर्स्ट साइन. सो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी लगती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर फिर एमिनो सेंटेंसेस लास्ट स्टेज में करता है. या जैसे बहुत सी बार बच्चों लिप्स जो है बच्चों, लिप्स में ऐसे क्लेफ्ट आ जाती है, कटा हुआ लिप्स रहता है. आपने सुना होगा इन एंड अराउंड कभी फैमिलीज में, जब से बेबी बॉर्न होता है तो कभी कभी नॉर्मली भी हेल्दी बेबी कटा हुआ लिप के साथ में आता है, बट कभी कभी उसे हम कहते हैं लिप क्लेफ्ट. ये भी एक साइन है अबनॉर्मल बच्चों का. तो ऐसे में लीगल परमिशन मिलती है पेरेंट्स को, और वो अमीनो सेंटेंसेस करते हैं. अमीनो सेंटेंसेस के बाद में पता चलता है बेबी लाइक नॉर्मल है या अबनॉर्मल है. नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स. सो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अभी इतने ज्यादा वैक्सीन आए बच्चों. रोटा वायरस करके नया वैक्सीन आया है. पहले ना मैक्सिमम बच्चे बॉर्न तो हेल्दी होते थे, बट कंटिन्यूअस डायरिया होने के कारण, है ना, कंटिन्यूअस डायरिया होने के कारण उनकी हेल्थ प्रॉपर नहीं बनती थी. मतलब अंडरवेट रहना या माल न्यूट्रिशन रहना, ऐसा बच्चों में होता था. तो अभी डायरिया को रोकने के लिए छोटे बच्चों में नया वैक्सीन आया है जिसे हम ऑप्शनल कहते हैं. वो कंपल्सरी